So here we start with the last topic, last session of this chapter, higher order thinking skills. इसमें से first, let's start now. N molecules. Now before I start with this, यहाँ पर मैं बात करना चाहूँगा mean square velocity की. If you remember the concept of mean square velocity क्या होता है? The concept of mean square velocity, आज जैसे RMS velocity होता है, उसी प्रकार mean square velocity होता है. दोनों में क्या फर्क होता है? तो मीन स्क्वायर वेलोसिटी का फॉर्मूला तो हमने देखा था ना, इफ यू रिमेंबर. सॉरी इसमें तो नहीं है, कहाँ पे? व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर मीन स्क्वायर वेलोसिटी बाय द वे? यस, मीन स्क्वायर वेलोसिटी का मतलब होता है सपोज देयर आर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, लेट्स से, तो मीन स्क्वायर वेलोसिटी इज मीन ऑफ द स्क्वायर्स. So it is nothing but v1 square plus v2 square plus v3 square dot 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 vn square, बराबर है क्या? Whole thing divided by n. This is mean of the squares. And root mean square velocity क्या होता है? It is v bar या vrms is equal to c bar और crms, इसका स्क्वायर रूट होता है, इसी का स्क्वायर रूट होता है, यही चीज उसको रूट ऑफ मीन ऑफ द स्क्वायर्स. एंड मीन स्क्वायर वेलोसिटी मतलब मीन ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द वेलोसिटीज. वेल लेट अस टॉक अबाउट दिस हियर नाउ. इसके बारे में बात करेंगे. नाउ मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ द मॉलिक्यूल्स इज गिवन बाय, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर मीन स्क्वायर वेलोसिटी? v square is equal to, if I consider this here, अगर यहाँ पे मैं मीन स्क्वायर वेलोसिटी की बात करूं तो ये बनेगा मीन स्क्वायर वेलोसिटी. If I'll take this kinetic energy per molecule, it is, so it will be 3 by 2 kbt. ये होता है ना, this is the formula for the mean square velocity, per mole of the gas, per mole 3 by 2 kbt. छोड़िए, यहाँ पे मैं डायरेक्टली दे देता हूँ. व्हाट इज द प्रेशर ऑफ द गैस इज गिवन बाय 1/3 रो into c square. C is the RMS velocity and c square is the mean square velocity. C is the RMS velocity and c square बोलो ये, या फिर उसको v square भी बोल सकते हैं आप लोग. That will be the mean square velocity. So basically c square is given by what? C square is given by 3. I can write this as, this is nothing but 1/3 density is equal to mass, total mass of the gas upon total volume of the gas, बराबर है, isn't it? So what will be c square is equal to, 3 times pv upon m. I hope this is clear, isn't it? But I know that pv is equal to nRT, or n number of moles. So let me just substitute here. This will become 3 times nRT upon the total mass of the gas. This is not molecular weight. We are going to denote the molecular weight or molecular mass by m0, right ना? चलिए, अब यहाँ पे मैं नंबर ऑफ मोल्स के लिए फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स के लिए आइदर इट इज मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, या तो फिर n अपॉन Na. ये दो फॉर्मूले होते हैं नंबर ऑफ मोल्स के लिए. तो आई विल गो फॉर द सेकेंड वाला फॉर्मूला. By the way, what is the total mass of the gas? It is the mass of each molecule into number of molecules. I hope you understand that. So by substituting both these things there, I'll get it as 3 times number of moles के लिए हम लिखेंगे n upon Na, and this is RT upon total mass of the gas is nothing but mass of each molecule into number of molecules. So this gets cancelled, isn't it? Now we also know that R upon Na, we also know that R upon Na is equal to Kb, Boltzmann constant. तो अगर वो मैं सब्स्टिट्यूट कर लूँ यहाँ पे, तो दिस इज गोइंग टू बी 3 times Kb T upon mass of each molecule. This is
So this is the RMS mean square velocity. This is the expression for mean square velocity. Is this okay? Hot sky of first problem hai, and I'll rate this as a star problem for sure. It's going to be a star problem. Okay. Now keeping this in mind, this is the c square बोलिए या आप इसको v square बोलिए, चलेगा. It is the mean square velocity. अब हम क्वेश्चन की तरफ जाते हैं. अभी तक हमने क्वेश्चन पढ़ा ही नहीं है, मैंने आपको सिर्फ यहाँ पर इंट्रोडक्शन दिया था मीन स्क्वायर वेलोसिटी का. लेट्स रीड द क्वेश्चन. n molecules each of mass m, each molecule has got mass m of a gas A, of a gas A, n number of molecules, हर एक का mass n m है, and 2n molecules each of mass 2m, 2n number of molecules और हर एक का mass 2m है, of gas B are occupied in the vessel which is maintained at temperature T. ये दोनों के दोनों एक ही वेसल के अंदर है जिसका टेम्परेचर है T. द मीन स्क्वायर वेलोसिटी, इसीलिए मैंने यहाँ पर मीन स्क्वायर वेलोसिटी है ना, इसीलिए मैंने मीन स्क्वायर वेलोसिटी का इंट्रोडक्शन कर लिया यहाँ पर. फॉर्मूला देख लिया. मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ बी टाइप इज डिनोटेड बाय वी स्क्वायर. इसका मीन स्क्वायर वेलोसिटी क्या है? वी स्क्वायर. ओके. एंड द मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ ए टाइप इज डिनोटेड बाय डब्ल्यू स्क्वायर. डब्ल्यू स्क्वायर क्या है जी? डब्ल्यू स्क्वायर इज द मीन स्क्वायर velocity, mean square of x component. This is mean square of x component of velocity. समझे? और ये टोटल मीन स्क्वायर है. तो दे वांट व्हाट इज द रेशियो w स्क्वायर अपॉन v स्क्वायर इज द क्वेश्चन क्लियर टू ऑल? क्वेश्चन सबको समझ में आ गया? इज द क्वेश्चन क्लियर टू ऑल? अब गैस मॉलिक्यूल्स के लिए एक बात और हम बात करते हैं यहाँ पे. अगर आपको याद होगा कि हमने जो डेरिवेशन देखा था गैस मॉलिक्यूल्स के, प्रेशर which is pressure exerted by the gas molecules on the walls of the container. इसके लिए हमने पहला ही मेरे ख्याल से हमारा वो लेक्चर था ना, in the first lecture only we saw the pressure exerted by the gas molecules, if you remember this. तो इस लेक्चर में हमने देखा था कि v square is equal to vx square plus vy square plus vz square, and moreover vx square plus is equal to vy square is equal to vz square is equal to, मतलब ये तीनों अगर गैस स्टेबल है किसी कंटेनर में है, isn't it? तो अगर कुछ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इस तरफ जा रहे हैं तो कुछ नंबर ऑफ, सो व्हाट विल बी द एवरेज वेलोसिटी? जीरो. गैस इधर से उधर कहीं नहीं जाता है, एवरेज वेलोसिटी विल बी जीरो उनका, मतलब isn't it? सो ये दो फॉर्मूले हैं उसके लिए. These are the two formulae that we already know about the gas molecules, isn't it? क्या है the gas molecules? ये दो फॉर्मूले, v square is equal to vx square plus vy square plus vz square, and vx square is equal to vy square is equal to vz square. अगर तीनों सेम है तो I'll say this is equal to 3vx square. मतलब vx square is equal to vy square is equal to vz square is v square upon 3. This is the formula for the gas molecules. अब अगर हम पहले इक्वेशन की बात करें, from the first equation and from the, तो ये for gas molecules of type A टाइप की अगर हम बात करें, A वाले टाइप की बात करें, so what will be velocity A square is given by this formula. A वाले मॉलिक्यूल को अगर मैं अप्लाई कर दूंगा तो what is VA square is equal to 3 times kBT upon m. I applied this formula for A type of molecules. Any doubts there? I asked you, any doubts there? मैंने पूछा कोई डाउट है किसी को? नहीं ना? ओके. आई अप्लाइड ये दोनों फॉर्मूले. कौन से दोनों फॉर्मूले? बेसिकली मैंने ये वाला फॉर्मूला अप्लाई किया. आई अप्लाइड दिस फॉर्मूला, और ये दोनों फॉर्मूले फॉर ए टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स. पहले ये वाला फॉर्मूला अप्लाई किया मैंने ए टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स के लिए. लेट मी कॉल दिस एज इक्वेशन 1 फॉर ए टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स. नाउ टॉकिंग अबाउट बी टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स, क्योंकि बी टाइप में उन्होंने एक्स कंपोनेंट की बात करी है. बी टाइप में उन्होंने एक्स कंपोनेंट की बात करी है. सो फॉर बी टाइप मॉलिक्यूल्स, और बी टाइप मॉलिक्यूल्स अगर मुझे वी एक्स स्क्वायर लिखना है तो वी एक्स स्क्वायर इज बेसिकली इक्वल टू 1/3 ऑफ वी स्क्वायर. वी एक्स स्क्वायर इज एक्चुअली 1/3 ऑफ वी स्क्वायर. बी टाइप है तो उसको मैं वी बी स्क्वायर बोलूंगा. समझ में आ गया क्या? समझ में आ गया क्या?
isn't it? Now that is equal to 1/3 of, now I will apply this formula for B type molecules, तो वो क्या बन जाएगा बताइए मुझे, 3 times Kb, दोनों का टेम्परेचर T ही है. बाय द वे ए टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स जो है उनका मास m है, ए टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स का मास कितना है, m है, और बी टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स का मास कितना है, 2m है. तो यहाँ पर मैं m के जगह पर क्या लिखना चाहूंगा, 2m. आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल, आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल. समझ में आ गया क्या, isn't it? तो इन दिस केस w स्क्वायर, एक सेकेंड, उल्टा हो गया रे. या दैट्स करेक्ट, दैट्स करेक्ट. दैट इज इक्वल टू कितना बन जाएगा ये, दिस विल बिकम for B type of molecules VB square, so this will become 3 gets cancelled, and this is KBT upon 2m, which is equal to X component of B type of molecules, huh? Isn't it? This is for B type of molecules, but B type of molecules का X component is denoted by W square. Do you understand that? Do you understand that? Isn't it? ए टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स के लिए अगर मैं यही चीज देखूं तो दिस विल बिकम 3 kBt अपॉन m. ए टाइप ऑफ मॉलिक्यूल, एक सेकंड, डब्ल्यू स्क्वायर नहीं बोला रे बाबा, बी टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स का उल्टा हो गया. बी टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स का उन्होंने सिर्फ आरएमएस वेलोसिटी दिया है, बी टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स का उन्होंने आरएमएस वेलोसिटी दिया है, मैंने ये उल्टा कर दिया. एक सेकंड, आई विल जस्ट इरेज आउट दिस थिंग, पूरा मुझे इरेज करना पड़ेगा. आई विल हैव टू अप्लाई इट फ्रेश. उल्टा किया ना मैंने, वेन से. एक सेकंड, ए टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स का एक्स कंपोनेंट और बी टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स का फुल वेलोसिटी, ये लेना है, करेक्ट ना. लेट अस टेक दिस बी टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड दिस इज फॉर ए टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स. तो ए टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स का पूरा वेलोसिटी मतलब ये वाला लेना पड़ेगा. दिस इज नथिंग बट v स्क्वायर इज इक्वल टू फॉर मॉलिक्यूल्स ऑफ बी टाइप 3 kBt अपॉन इसका मास है 2m. समझ में आ गया. एंड दिस इज कॉल्ड एज v स्क्वायर. ओके, दिस इज फॉर बी टाइप ऑफ मॉलिक्यूल. ए टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स के लिए अगर मैं लिखूं तो vx स्क्वायर और ए टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू 1/3 ऑफ v स्क्वायर, एंड v स्क्वायर के लिए ये फॉर्मूला होगा. सो दिस इज 1/3 v स्क्वायर, मतलब व्हाट इट इज गोइंग टू बी 3 times kBt upon m, and this is for which molecules, a type of molecule. But इस vx square को they are calling this as w square. So all in all, what is w square is equal to, w square is equal to 3 gets cancelled, so this is simply kBt upon m, and this is w square, and they want what is the ratio of w square upon v square. So I'll divide this w square upon v square is equal to क्या बन जाएगा बताइए, this will become kBt upon m, isn't it, divided by 3 kBt upon 2m. So kBt upon m gets cancelled, kBt upon m gets cancelled, and this is equal to 2:3. Is this okay? So what's the answer here? 2:3. C is the answer. Easy था वैसे, ये थोड़ा सा कंफ्यूज करने वाला था. So shall I call this as half star problem? Should this be a half star problem? या स्टार नहीं होगा, स्टार होगा. अच्छा, स्टार इज करने का. ओके बाबा, कर लो. चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 2. वी गो फॉर क्वेश्चन नंबर 2. चलिए देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 ये रहा आपके स्क्रीन के सामने.
चलिए शुरू करते हैं. नाउ बिफोर आई प्रोसीड फर्दर, इसका कुछ इंट्रोडक्शन मैं आपको बताना चाहूंगा. यू नो व्हाट, दिस बॉयल्स लॉ क्या बोलता है? बॉयल्स लॉ, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, करेक्ट, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम. सही है ना? At constant temperature, pressure is inversely proportional to volume. Or in other words, I can say that is PV is equal to constant. अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है, उसी को अलग तरीके से हम लिख सकते हैं. नाउ वॉल्यूम इज नथिंग बट, इफ आई वांट टू एक्सप्रेस इट इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी, तो डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम. So what will be volume? It will become pressure into volume के जगह पर आएगा mass upon density is equal to constant. I hope you get that. बराबर है क्या? और in other words, if I talk about the density, then this will be pressure upon density is equal to K upon M, which is yet another constant for the given mass. Mass अगर constant है, तो this will become K dash. It's again a constant. V से यहाँ पर मैंने दो कांस्टेंट्स की बात करी है, एक टेम्परेचर कांस्टेंट है और दूसरा मास भी कांस्टेंट अगर होगा तो. आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग देयर. सो व्हाट विल बी द डेंसिटी इज इक्वल टू, डेंसिटी इज इक्वल टू क्या बन जाएगा यहाँ पर? डेंसिटी इज इक्वल टू पी अपॉन के डैश. डेंसिटी इज इक्वल टू पी अपॉन के डैश. बराबर है क्या? और वैसे मैंने वॉल्यूम के लिए क्या लिखा था? व्हाट वाज वॉल्यूम इज इक्वल टू? तो आई कैन से वॉल्यूम, if I substitute for volume here, volume is equal to m upon density, something like that. चलिए इस प्रीरिक्विजिट के आगे चलते हैं. अब हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. So here I talked about the Boyle's law and various things about the Boyle's law. Two chambers containing m1 and m2 grams of gas. There are two chambers. I would say this is one chamber, and then there is one more. These chambers are connected by they are like this. These are the two chambers having m1 and m2 grams of gas at pressures P1 and P2 respectively are put in communication with each other. I hope you understood this. Okay, the temperature remaining constant, the temperature remaining constant, the common pressure will be. अब देखिए पार्शियल प्रेशर का कॉन्सेप्ट कब होता है? जब वो एक ही वॉल्यूम में इकट्ठा होते हैं, दैट विल बी द पार्शियल प्रेशर. लेकिन यहाँ पर वो अलग अलग वॉल्यूम में थे और उस वॉल्यूम को फिर कम्युनिकेट कर दिया है. इज दिस क्लियर? थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है ये, लिटिल डिफरेंट हियर. तो व्हाट आई विल से हियर इज आई वांट टू राइट डाउन व्हाट इज वॉल्यूम V1 हियर. अगर मुझे वॉल्यूम V1 के लिए लिखना पड़ेगा, तो व्हाट इज वॉल्यूम V1? इट इज इक्वल टू मास m1 अपॉन डेंसिटी. डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, राइट ना? मैं बोलूंगा मास अपॉन डेंसिटी. एग्री? बट व्हाट इज डेंसिटी इज इक्वल टू? मैंने यहाँ पर बॉयल्स को अप्लाई किया क्योंकि टेम्परेचर उसका कांस्टेंट है और कांस्टेंट टेम्परेचर के चलते गिवन मास के लिए आई गॉट दिस एक्सप्रेशन. बराबर है क्या? Isn't it? So देखिए ना, प्रेशर हम दूसरे तरीके से भी इसको देख सकते हैं. प्रेशर एक्सर्टेड इज इक्वल टू 1/3 रो सी स्क्वायर. सी स्क्वायर जो है वो डिपेंड करता है टेम्परेचर के ऊपर. तो अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो आरएमएस वेलोसिटी, बिकॉज आरएमएस वेलोसिटी इज गिवन बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3RT अपॉन m, ये भी पता होगा शायद आपको. तो टेम्परेचर कांस्टेंट तो आरएमएस वेलोसिटी कांस्टेंट, आरएमएस वेलोसिटी कांस्टेंट, तो प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी. और इन अदर वर्ड्स आई कैन से दैट डेंसिटी इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ सम कांस्टेंट. वही चीज मैंने यहाँ पर लाई है. यस और नो? हेलो हेलो हेलो. तो यहाँ पे मैं अगर डेंसिटी के लिए सब्स्टिट्यूट करूंगा तो दिस विल बिकम मास m1 अपॉन डेंसिटी इज इक्वल टू p अपॉन k डैश. k डैश इज अ कांस्टेंट, ये ऊपर चला जाएगा. सो व्हाट इज वॉल्यूम इज इक्वल टू? वॉल्यूम इज गिवन बाय k डैश बोलो या k टाइम्स बोलो m1
अपॉन प्रेशर होगा इसका P1. I hope you understood that. Similarly, what will be the volume V2 is equal to K dash into M2 upon P2. I hope this is clear to you all. Yes or no? Please tell me. अब ये दोनों वॉल्यूम्स मिक्स हो रहे हैं, ये वॉल्यूम V1 है और ये वॉल्यूम V2 है, दोनों वॉल्यूम इकट्ठा हो रहे हैं. सो द टोटल वॉल्यूम V इज इक्वल टू V1 प्लस V2, क्योंकि उनको नेगेट कर दिया है. अब उसके चलते मुझे उसका प्रेशर फाइंड आउट करना है. सो दिस इज गोइंग टू बी व्हाट, आई विल टेक दिस K डैश, कॉमन ले लेंगे हम इस K डैश को, इजंट इट. क्या बन जाएगा वॉल्यूम V K डैश अप इंटू M1 अपॉन P1 प्लस M2 अपॉन P2. आई वॉन्ट टू फाइंड आउट व्हाट इज द प्रेशर. मैंने वॉल्यूम फाइंड आउट कर लिया है. अब अगर हम प्रेशर की बात करेंगे तो let P be the common pressure. This is the total volume and let P is equal to the final pressure जो मुझे find out करना है, common pressure, and rho is the common density. क्योंकि ग्लास मिक्स होके इधर उधर चले जाएंगे तो उसका डेंसिटी भी चेंज होने वाला है. सो लेट अस से rho is the common density, isn't it? तो what will be the density of this mixture? Density is equal to, दोनों के masses तो ऐड हो चुके हैं M1 plus M2 और दोनों के वॉल्यूम्स भी ऐड हो चुके हैं V1 plus V2. Did you understand this? This is the density of the mixture. This is the density of the mixture. अब हम यहाँ पर V1 plus V2 सब्स्टिट्यूट करेंगे. So this will become M1 plus M2 divided by यहाँ से K डैश बाहर निकालिएगा and this is V1 plus V2, that is M1 upon P1 plus M2 upon P2. समझे? Isn't it? अब इसका मुझे अगर ये है डेंसिटी, नाउ डेंसिटी और डेंसिटी और प्रेशर आर कनेक्टेड लाइक दिस. सो व्हाट इज प्रेशर इज इक्वल टू K डैश टाइम्स डेंसिटी. अगर ये है डेंसिटी, then the pressure is given by K dash times this density, that is equal to K dash into all these things that I have written here. मतलब क्या होगा, M1 plus M2 divided by K dash times M1 upon P1 plus M2 upon P2. Is this okay? This K dash gets cancelled here. Let me just take the LCM here. So this will become M1 plus M2 इंटू इसका एलसीएम आके ऊपर चला जाएगा P1 P2 डिवाइडेड बाय M1 P2 प्लस M2 P1. वेल दिस इज द टोटल प्रेशर एंड दैट इज ऑप्शन आई थिंक ए. एंड दिस इज स्टार बोलो, डबल स्टार बोलो, जो भी बोलना है बोल दीजिएगा. आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल. इज दैट क्लियर टू ऑल? एनी डाउट्स अबाउट दैट? मैंने क्या किया यहाँ पे, जस्ट हैव अ ब्रीफ लुक एट दिस. दोनों का मैंने बॉयल्स लॉ, यहाँ पर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो आई अप्लाइड द बॉयल्स लॉ. बॉयल्स लॉ के हिसाब से अगर देखा जाए तो, या फिर हम प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस भी अगर देखें, P इज इक्वल टू 1/3 rho C स्क्वायर, C इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3 RT अपॉन M. देखिए यहाँ पे फॉर द गिवन गैस M कांस्टेंट होता है. सो जब तक T कांस्टेंट है तब तक C कांस्टेंट होगा, और C अगर कांस्टेंट है तो प्रेशर इज इक्वल टू रो अपॉन K डैश. यही चीज मैंने यूज करी है इसके लिए. So I found out the volume of the first gas, volume of the second gas, because their volumes are getting added. Then I wrote down the density of the gas. I wrote down key points कौन से हैं. पहले मैं उसका वॉल्यूम लिखा, फिर मैंने उसका डेंसिटी लिखा, कॉमन डेंसिटी, और डेंसिटी I converted into the common pressure, and then I got the answer. Is this clear to all? These are the 3 key points here. समझ में आ गया? Did you understand that? Hello. चलिए आगे बढ़ते हैं. Let's go for the next question. Question number 3. A gas is filled in a cylinder and its temperature, a gas is filled in a cylinder, its temperature is increased by 20% on Kelvin scale and volume is reduced to 90%. How much percentage of the gas has to leak for pressure to remain constant? क्वेश्चन समझ में आ गया आपको? इसके अंदर गैस भर दिया है. इनिशियल कंडीशंस में बोलूंगा PV is equal to nRT.
दिस इज इनिशियल कंडीशन। समझ में आ गई बात? अब उसके अंदर कुछ चेंजेस किए गए हैं। क्या चेंज किया है देखिए, टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड बाय 20% ऑन केल्विन स्केल। ऑफ कोर्स दिस इज केल्विन स्केल। 20% से इंक्रीज किया तो नया टेम्परेचर होगा 1.2 टाइम्स T dash is equal to 1.2 times T। 20% से इंक्रीज किया है। आई होप यू अंडरस्टैंड दैट। 20% इंक्रीज बराबर है ना, 100 के लिए 20, 100 के लिए 120, व्हाटएवर, एंड वॉल्यूम इज रिड्यूस्ड टू, देखो इंक्रीज्ड बाय एंड रिड्यूस्ड टू, इंक्रीज्ड बाय 20% एंड रिड्यूस्ड टू 90%। इंक्रीज बाय 20% है मतलब अगर ओल्ड टेम्परेचर एंड न्यू टेम्परेचर, ऐसा आपने को यूनिटरी मेथड से लिखना पड़ेगा। ओल्ड टेम्परेचर 100 है तो नया टेम्परेचर 120 होगा। ओल्ड टेम्परेचर T है तो नया टेम्परेचर कितना होगा, इसके लिए इतना तो उसके लिए कितना, समझे? दिस इज कॉल्ड एज यूनिटरी मेथड। समझ में आ गई बात? तो T डैश इज इक्वल टू T इंटू 120 अपॉन 100 और उस तरह से वो 1.2 T आया। समझ में आ गई बात? लेकिन जब वॉल्यूम की बात कर रहे हैं तो नया वॉल्यूम जो है इट इज रिड्यूस्ड टू, तो नया वॉल्यूम इज 90% of पुराना वॉल्यूम, that means it is 0.9 times V। Do you understand that? Increased by and reduced to, is this okay? अब how much percentage of the gas has to look to maintain the pressure, मतलब नया प्रेशर भी बाबा चेंज होने वाली है, बराबर है क्या? हम क्या बोलते हैं कि नया प्रेशर जो है वो सेम ही रहेगा, P2 इज इक्वल टू P1 या P डैश इज इक्वल टू P1 बोलेंगे हम, लेकिन उसके लिए गैस को लीक करना पड़ेगा। मतलब पहले नंबर ऑफ मोल्स n है तो उसमें से गैस जब लीक आउट करके बाहर जाएगा तो नया नंबर ऑफ मोल्स n डैश होगा, जो कि मुझे कैलकुलेट करने का है। समझ में आ गई बात? नया प्रेशर मेंटेन करने का है ना रे बाबा। डिड यू अंडरस्टैंड दैट? सो व्हेन आई राइट द सेकंड इक्वेशन, दिस विल गिव मी व्हाट, p into 0.9 times v is equal to n dash, which I have to calculate r, and temperature is 1.2 times t। This is second equation। Did you understand this second equation? To be specific, क्या उसमें आपको n dash मैंने ऐसा क्यों लिया, वो समझ में आ गई बात? समझ में आ गई बात? Because the pressure has to be maintained, so gas will leak out। gas will leak out मतलब there will be less number of moles, less number of moles will be there। Let me divide these two equations here। दोनों equations को हम divide कर लेते हैं। यहाँ पे क्या मिल जाएगा देखते हैं। So after dividing we get this as p cancel, v cancel, p cancel, v cancel, r cancel, t cancel, number of moles सिर्फ बचेंगे। यहाँ पे क्या बचेगा बताइए? Give me 1/0.9, करेक्ट बोला आप लोगों ने, इज इक्वल टू n अपॉन n डैश इंटू 1.2। सो n डैश और n का रेशियो क्या आएगा, और व्हाट विल बी n डैश इज इक्वल टू 3 3 9 एंड 3 4 12। समझ में आ गई बात? सो n डैश इज इक्वल टू 3/4 ऑफ n, n dash is equal to 3/4 of L। So what is the percentage gas leaked? Percentage gas leak क्या होगा? Change in the volume, the gas leaked divided by original gas। Percentage gas leak का मतलब कितना, कितना percentage gas गया? So it is gas leaked divided by original amount of gas into 100। तो गैस लीक कितना हो गया? पुराना वाला n था नंबर ऑफ मोल्स, बाद में नया वाला नंबर ऑफ मोल्स इज n डैश डिवाइडेड बाय ओरिजिनल नंबर ऑफ मोल्स n into 100। बट आई नो दैट n minus n dash is 3/4 of n divided by n into 100। n common n cancel, so 1 minus 3/4 is 1/4 into 100। तो भाई 75% गैस लीक हो गया, तो बचा कितना? 25% गैस बचा। So the what is the amount of gas leaked here is 25%। पता नहीं, should I call this a star? हाँ, because this is part of HOTS। समझ में आ गया सबको? ओके देखिए, समझ में आना एक बात होती है, उसको मास्टर करना अलग बात होती है। उसको मास्टर करिएगा, मतलब प्रैक्टिस कीजिएगा, नहीं तो फिर टेस्ट में क्या होता है आप लोग अभी महसूस कर रहे हो, है ना? क्योंकि अंडरस्टैंड, हाँ मतलब डोंट गेट मी रॉन्ग, आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल यू कि अंडरस्टैंडिंग इज वन थिंग एंड मास्टरिंग द सेम कॉन्सेप्ट इज अ डिफरेंट थिंग। तो आप लोग उसको मास्टर भी कर लीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो दैट वाज अ वेरी नाइस क्वेश्चन। नाउ लेट मी गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन।
That is question number 6. Question number 6. Now, before I go for question number 6, let me just give you some brief recap of some of the formulae. By Cp is called as the specific heat at constant pressure. Okay, Cv is the specific heat at constant volume. और इन दोनों में कनेक्ट करने वाले दो फॉर्मूले हैं. Cp minus Cv is equal to R and Cp upon Cv is equal to gamma. सही है. चलिए, इसका एक्सप्लेनेशन जब मैंने आपको दिया था तब अगर आपको मैं याद दिला दूं कि वहां पे I considered two cases. A gas is heated, या यही है वो, दिस इज इट. वेल, जहां पे मैंने आपको ये एक्सप्लेन किया था कि भाई गैस कैन बी हीटेड इन टू वेज. दिस वाज द फर्स्ट वे द गैस वाज हीटेड. इसमें क्या किया था आप बता सकते हो मुझे? कैन यू प्लीज टेल मी व्हाट वाज डन हियर? इन दिस केस व्हाट वी हैड डन वाज कि गैस का वॉल्यूम, यहाँ पे स्टॉपर्स दिख रहा है आपको, स्टॉपर्स की वजह से गैस का वॉल्यूम इज केप्ट फिक्स्ड. So whatever heat was added, the amount of heat is added at constant volume, isn't it? So heat added is used only for increasing the internal energy. So dQ1 is equal to dE is equal to the amount of gas is 1 mole of gas. So it is NCV dt, isn't it? दूसरा केस था कि जिसमें हमने so यहाँ पर heat is added at constant volume. On the contrary, सेकेंड केस में मैंने उसके ऊपर फिक्स्ड वेट रखा. इसकी वजह से क्या कांस्टेंट रहा वहां पे? प्रेशर कांस्टेंट रहा, isn't it? तो यहाँ पर गैस एक्सपांड होते गया, उसके ऊपर ये वेट फिक्स है मतलब फोर्स फिक्स है मतलब प्रेशर फिक्स है, एंड देयर इज चेंज इन द वॉल्यूम. अब जैसा कि हम जानते हैं कि पहले जब उसको जो भी एनर्जी मिलेगा पहले वो खुद का पेट भरेगा, इंक्रीज इन द इंटरनल एनर्जी, बाद में इट विल डू द एक्सटर्नल वर्क ऑफ एक्सपेंशन. सो dQ2 in this case is dE plus dW, which is nothing but 1 Cp dt is equal to, now dE, ये dE और ये dE सेम है क्योंकि वो इंटरनल एनर्जी है. डू यू रिमेंबर दिस थिंग? ये डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका प्रैक्टिस कीजिएगा. मैं डेरिवेशन पूछने वाला हूँ और एग्जाम में पूछते हैं. दिस डेरिवेशन इज इंपॉर्टेंट. सो dE प्लस dW, समझ में आ गया? dE प्लस dW. सो dQ2 के लिए ये वाला फॉर्मूला है दोनों को कनेक्ट करने वाला, और टू बी मोर स्पेसिफिक dQ2 इज नथिंग बट, so this is the formula Cp into dt, ये रहा फॉर्मूला उसका. इज दिस क्लियर टू ऑल? सो इन शॉर्ट में फॉर्मूला क्या लिख सकता हूं यहाँ पे? dQ2 is the heat added in the second case. What is the heat added in the second case? 1 Cp into dt is equal to dE, which is the heat which is required for increasing the internal energy. So it will be 1 Cv dt plus the work of expansion, it is PdV. ये इक्वेशन आपको समझ में आ रहा है? I'll take this equation as it is. Cp dt is equal to Cv dt plus P delta V. Is this okay? I will just copy this equation as it is for this question. ये इक्वेशन में as it is अगर यहाँ पे कॉपी कर लो इस क्वेश्चन के लिए तो ये इक्वेशन क्या बनेगा बताइए? 1 Cp dt, एक सेकेंड, हाँ, इट्स अ मोलर के लिए कैपिटल सी यूज करते हैं, कल हमने देखा. प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट स्मॉल cv एंड मोलर स्पेसिफिक हीट कैपिटल cv. आई होप यू अंडरस्टैंड दैट. सो डिड आई सेंड यू यस्टरडेज नोट्स? ओके. सो दिस इज 1 Cp dt is equal to 1 Cv dt plus P delta V, PdV. समझ में आ गया? आप लोग प्लीज यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आप लोगों का फोकस हट रहा है बार बार, प्लीज पे अटेंशन. Cp, इस dt को मैं ट्रांसफर कर दूंगा इधर, डिवाइड थ्रू आउट बाई dt. सो Cp इज इक्वल टू Cv प्लस P dV अपॉन dt. आई होप यू अंडरस्टूड दिस. आई होप यू अंडरस्टूड दिस. ये समझ में आ गया आपको? दिस इज द वर्क ऑफ एक्सपेंशन. ये फॉर्मूला अगर आपको समझ में आ गया तो अब हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. अब हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं. सो दिस वाज द ब्रीफ बैकग्राउंड इंट्रोडक्शन फॉर दिस क्वेश्चन. जब भी मैं ऐसा इंट्रोडक्शन आपको देता हूँ मेरे ख्याल से आपको समझने में थोड़ी सी आसानी हो जाती है कि नहीं होती? हाँ, पहले मैंने उसको आपको थियरी पार्ट उसका बता दिया या व्हाटएवर रिलेटेड फॉर्मूला. कम ऑन, let's start with this now. A gas has molar heat capacity C.
गैस का मोलर हीट कैपेसिटी इज C, is this much moles. In the process, PT is equal to constant. PT is equal to constant. Actually, आइडियल गैस इक्वेशन है PV is equal to nRT. ऐसा कुछ तो भी एक इक्वेशन होता है. और एक इक्वेशन जो हम नेक्स्ट चैप्टर में देखने वाले हैं, PT is equal to constant, यहाँ पर इन्होंने दिया है ना. Let me say PT is equal to constant. Okay. लेकिन आइडियल गैस इक्वेशन इज दिस, isn't it? For 1 mole of the gas क्या बन जाएगा? For n is equal to 1, यही इक्वेशन बन जाता है PV is equal to RT. दिस इज आइडियल गैस इक्वेशन. इसके साथ ये तो वो ओबे करेगा ही करेगा, लेकिन इसके साथ साथ ये भी ओबे कर रहा है. तो दे आर आस्किंग व्हाट इज द नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस. इसके लिए कितना है डिग्रीज ऑफ फ्रीडम. अब देखिए यहाँ पे हम लिख सकते हैं व्हाट इज प्रेशर इज इक्वल टू, दिस इज RT अपॉन V. ये वाला फॉर्मूला अगर हम इधर सब्स्टिट्यूट कर ले तो ये क्या बन जाएगा, दिस विल बिकम RT अपॉन V इंटू T is equal to K, or in other words what will be the volume is given by, volume is given by RT square upon K, RT square upon K. Now volume is a function of temperature differentiating with respect to टेम्परेचर T. टेम्परेचर के साथ अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो मुझे ये dV by dt आएगा, इसीलिए मैं उसको डिफरेंशिएट कर रहा हूँ टेम्परेचर T के साथ. सो दिस विल बिकम dV by dt इज इक्वल टू R अपॉन K इज अ कांस्टेंट, और 2t t स्क्वायर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू T इज 2t. आई होप यू अंडरस्टूड दैट. आई होप यू अंडरस्टूड दैट. आपको शायद समझ में आ रहा है. बट आई नो दैट dV by dt, ये जो मेरे ख्याल से यहाँ पे मेरे को मिल रहा है कि भाई इस इक्वेशन से व्हाट आई कैन से दैट T अपॉन K इज इक्वल टू 1 अपॉन P, विच T अपॉन K. तो ये T अपॉन K के लिए मैं इधर सब्स्टिट्यूट कर दूंगा. ओके, तो क्या बन जाएगा बताइए. दिस विल बिकम दैट इज इक्वल टू 2R अपॉन P. वेल ये इक्वेशन मुझे मिल गया. ठीक है, आई गॉट दिस इक्वेशन. ये रहा हमारा गिवन इक्वेशन नंबर 1. ये तो आइडियल गैस इक्वेशन है, एंड दिस इज द सेकंड इक्वेशन दैट आई गॉट फॉर dV by dt. आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल. अब हम जाते हैं हमारा ये जो इक्वेशन हमने थोड़ी देर पहले देखा था उस इक्वेशन की तरफ. Cp is equal to, so let me substitute here, Cp is equal to Cv plus dV by dt. यही इक्वेशन है ना वो, P times dV by dt, sorry, P times dV by dt. And let me substitute now. तो यहाँ पर अगर मैं सब्स्टिट्यूट कर लूंगा क्या बन जाएगा बताइए. दिस विल बिकम Cp is equal to Cv plus P times dV by dt. dV by dt is 2R upon P. तो ये P gets cancelled. So what do we get there? This will give me Cp minus Cv. अब और एक चीज आपको पता है कि if n number of degrees of freedom या f number of degrees of freedom है तो Cv is given by what? f by 2 times R. f by 2 times R बराबर है ना, वो टेबल जो मैंने दिया था उस हिसाब से, कल का टेबल जो था. So let me substitute this over here now. So what will be Cp is equal to f by 2 times R plus 2R. f by 2 times R plus 2R. तो अब मुझे इन्होंने C का जो वैल्यू दिया है, C का जो वैल्यू दिया है वो ऑलरेडी दिया है. सो दिस एक्चुअली इज Cp. ये Cp में सब्स्टिट्यूट करूंगा 37.55. सो दिस विल बिकम 37.55 और यहाँ से R कॉमन आएगा एंड दिस विल बिकम f by 2 plus 2. R का वैल्यू भी अपने को पता है. व्हाट इज R का वैल्यू? 8.3 ना. R का वैल्यू क्या होता है? R का वैल्यू क्या होता है? 8.31 या सिर्फ 8.3 में लिख लूँ, बराबर है क्या? सो लेट मी सब्स्टिट्यूट दिस विल बिकम 8.31 एंड दिस इज 37.55 into f by 2 plus 2. कैलसी 37.55
37.55 divided by 8.31, 4.51 है ना, 4.51. So this will be 4.5 is equal to f by 2 plus 2. बोलिए ना, हाँ तो अप्रोक्सीमेट कर लो ना, अप्रोक्सीमेशन. इसको मैं अप्रोक्सीमेटली बोलूंगा बाबा 237 और ये 8 है, तो अप्रोक्सीमेटली कितना हो जाएगा, 132. बराबर है क्या, 32 और 5 50 50 8 6 हो गया ना अप्रोक्सीमेशन. कैलकुलेटर नॉट अलाउड, करेक्ट है. सो दिस विल बिकम, अरे यार, हेलो, नो. So this will become 2.5 is equal to f by 2. So what is the number of degrees of freedom? 5. Number of degrees of freedom? 5. So the answer is D. What kind of gas it is? 5 degrees of freedom. It's a diatomic gas. No vibrations. समझे ना? हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन at ordinary temperature. चलिए, समझ में आ गया? मुझे लगता है मुझे इसको स्टार बोलना ही पड़ेगा, है ना, अनडाउटेड. अच्छा, चलिए आगे बढ़ते हैं. लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन. Question number 7. Now before I go for question number 7, before I go for this question, मैं आप लोगों को एक नई चीज यहाँ पे बताना चाह रहा हूँ कि what is meant by the mean free path. What is meant by the mean free path? Okay? गैस मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, आप here we'll talk about the mean free path. Please have a look at this the screen here. What we see, ये आइडियल गैस इक्वेशन जो चैप्टर है इसका सेकंड पेज, मतलब इट इज इंट्रोडक्शन, बिहेवियर ऑफ द गैस, हाउ डज द गैस बिहेव. This is the ideal gas and the real gas. The gas is in the container here. It is shown in the container. बराबर है क्या? Okay. Now these gas molecules, they are having a random motion. They are continuously moving. और जैसे इस गैस का टेम्परेचर बढ़ता जाएगा वैसे उसका वेलोसिटी बढ़ता जाएगा. Now these number of gas molecules, they are randomly moving inside the container, and during its motion they are constantly colliding with each other. तो एक गैस मॉलिक्यूल अगर ऐसे जा रहा है तो जाते जाते वो किसी दूसरे पर जैसे ही कोलाइड हो जाता है, these collisions are perfectly elastic collisions. तो वो ऐसे कोलाइड होता है, फिर इधर कोलाइड होता है. एक किसी पर्टिकुलर गैस मॉलिक्यूल का अगर मोशन हम स्टडी करें तो वो कुछ इस प्रकार से होगा, यहाँ से उधर जा रहा है, फिर इधर जा रहा है, कोलिजन्स के बाद फिर इधर जा रहा है, फिर इधर जा रहा है, isn't it? And this is a random motion. This type of motion was termed as Brownian motion. हम इसको Brownian motion बोलते हैं. These molecules are in continuous random motion, such as Brownian motion that you have studied in 11th chemistry, if at all. Anyways, मैंने आपको बता दिया कि क्या उसका किस टाइप का मोशन होता है. अब इसमें we say कि अगर the distance between the two consecutive collisions, if we try to find out the mean of this, अगर यहाँ पर ये जो डिस्टेंसेस दिख रहा है आपको, दिस इज द फर्स्ट डिस्टेंस, isn't it? फिर ये दूसरा डिस्टेंस है, I'll call this as L1, I'll call this as L2, I'll call this as L3, L4, etc. अगर मैं इन सब का मीन फाइंड आउट करूंगा, L1 plus L2 plus L3 plus dot 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 Ln divided by n, then that will give me the average value of this lambda. We call this as lambda, which is called as mean free path. Mean free path. Is this clear to you all? So this is the expression for this is the concept of mean free path. Is that understood? The average distance between the two successive collisions is called as mean free path. Understood? इसका एक बना बनाया रेडीमेड फॉर्मूला है जो हम एज इट इज एक्सेप्ट करेंगे, जो कि इस प्रकार दिया है. सो दिस इज लैम्बडा इज इक्वल टू क्या दिया है यहाँ पर,
lambda is equal to, this is the expression for mean free path. Put it in the box please. No discussions when I'm telling you something please. ये तुम्हारा बुक ले लो, यहाँ पर है, मैंने लिया था. Lambda is equal to 1 upon root 2 pi d square n upon v. इसमें d is the diameter of the molecule. D is the diameter of the molecule, molecule diameter. N is the number of molecules and V is the volume of the gas, volume occupied by the gas. Is this clear to you all? Did you understand that? No, chal raha hai. Thank you. Is this okay? Any doubts about that? So ये एक important formula है, हाँ? D is the diameter of the molecule, N is the number of molecules and V is the volume occupied by the gas. Is that okay? चलिए, तो ये था फॉर्मूला फॉर मीन फ्री पाथ. आप लोगों ने इसको ब्लॉक्स में डाल दिया? Have you written all these things here? चलिए अब बात करते हैं. Let us continue. तो यहां पर जो नोट हम कंसिडर कर रहे हैं, सी, और एक चीज बता दूं, चैप्टर का एमसीक्यू देखो, इसमें थर्ड या फोर्थ एमसीक्यू मीन फ्री पाथ का फॉर्मूला पूछा है उन्होंने डायरेक्ट है. हाँ, नोट अभी सोचने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट तुम्हारे सामने है क्वेश्चन. चलिए, so this is the expression for mean free path. I'll just copy that. Is this clear to you all? इसके बारे में और भी कुछ जानकारी अभी हम देखने वाले हैं. Let's see few more things over here. जैसे कि मैंने आपको बताया, V is the volume occupied by the gas. And N is the number of molecules. D is the diameter of gas molecule. ठीक है, लेट्स टेक दिस फर्दर, और थोड़ा सा आगे लेके जाते हैं इसको. अब कई बार ये जो N अपॉन V होता है ना, उसे NV कहते हैं, NV. एंड एट टाइम्स N upon V is NV. We call this as NV. Okay. So ये फॉर्मूला कई बार इस तरह से भी दिखता है. लैम्बडा इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट 2 टाइम्स पाई डी स्क्वायर इंटू NV. समझे? ऐसा भी दिखता है. दैट्स फाइन ना. अब मुझे बताओ, व्हाट इज नंबर ऑफ मोल्स? Number of moles is given by N upon Na, Avogadro's number, isn't it? And so यहाँ पर मैं and one more thing is PV is equal to nRT. ये भी अपने को पता है. So I'm trying to write down expression for capital N. तो यहाँ से मुझे क्या मिल जाता है? What is capital N is equal to N into Na. सही है ना? If I'll substitute for capital N, this will become number of moles into Na divided by, what will be the volume occupied by the gas? The volume occupied by the gas is given by, यहाँ से क्या मिल जाएगा मुझे? V is equal to nRT upon P. Let me just substitute these two things here. So what is V is equal to nRT upon P, right? इसमें से N gets cancelled. Now we also know that R is equal to Na into Kb, or in other words, Na upon R is actually Kb, isn't it? So ये P ऊपर चला जाएगा.
what's going to become, what is NV is equal to P into KB upon T, because I have substituted for Na upon R as KB and P ऊपर गया है, so it will be P KB upon T. अगर इसको मैं substitute कर लूँ यहाँ पे, how this formula is going to get modified? Therefore lambda is given by, बोलिए main free path lambda is also given by P upon what is this going to become? Sorry, ये तो NV नीचे होगा ना. I have to substitute for this NV and this NV is equal to this ना. तो क्या बन जाएगा? एक सेकंड, this is going to become, ये P KB upon T, जो T है वो ऊपर चला जाएगा ना, isn't it? So this will become T upon root 2 times pi d square into NV के जगह पर ये चीजें, मतलब P KB. Is this clear to all? यार गड़बड़ हो गया, कुछ तो गड़बड़ हो गया है. P upon KBT होगा ना रे. हाँ, एक सेकंड, गड़बड़ हो गया यहाँ पे. क्या हो गया ये? होल्ड ऑन प्लीज. सी, मुझे चाहिए Na अपॉन R, तो Na अपॉन R इज एक्चुअली 1 अपॉन KB ना रे. तो ये KB ऊपर नहीं होगा, नीचे होगा ना. हेलो, या फिर सीधा सीधा सब्स्टिट्यूट R इज इक्वल टू Na KBT, Na कैंसिल, तो ये KB नीचे रहेगा. बाय मिस्टेक आई रोट इट अप देयर. KB कहाँ रहेगा यहाँ पे? तो ये आएगा P अपॉन KBT. so this is KBT इधर आएगा. Is this clear to all? So this is one more formula for the mean free path. इसका डेरिवेशन मैंने आपको यहाँ पे दिया है. This is the one which is given in the book and this is the one which is also used many a times. KBT upon root 2 pi d square P. P is the, क्या होगा यहाँ पे बताइए एक एक चीजें. This is Boltzmann constant. This is the temperature of the gas. And this is the pressure of the gas, this is diameter of the gas molecule. So it can be in terms of NV or it can be in terms of T and P also. Is that clear to you all? This is the expression for mean free path. Any doubts about this? This is the expression for mean free path. Now based on this there are couple of questions that we are going to talk about here. Let's see. Question number, question number 7. Question number 7 देखते हैं क्या दिया है. देखिए यहाँ पे, this is based on the mean free path concept. Calculate the mean free path of nitrogen molecule. Calculate the mean free path of nitrogen molecule. तो लैम्बडा पूछा है उन्होंने यहाँ पे सीधा सीधा. क्या क्या दिया है? एट व्हाट टेम्परेचर? 27 डिग्री सेल्सियस, बट इट हैज टू बी इन केल्विन, 300 केल्विन. बराबर है. एंड द प्रेशर इज 1 एटमॉस्फेयर. प्रेशर इज 1 एटमॉस्फेयर, बट जहां पर आपको पता है कि 1 एटमॉस्फेयर इज 1.013 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपको पता है, राइट ना? और पास्कल बोलते हैं इसको, तो ये है पास्कल. ये कन्वर्जन फैक्टर्स आपको याद रखने पड़ेंगे बॉस, है ना यार? ओके. Then diameter of the nitrogen molecule, diameter of the molecule D is equal to 1.5 angstrom. But angstrom क्या होता है? 1.5 into 10⁻⁻10 मीटर. ओके. Then KB का वैल्यू दिया है यहाँ पे. KB is equal to 1.38 into 10⁻23 joule per Kelvin. If the average speed of the nitrogen molecule is 675 meter, average speed is 675 meter per second. Okay, the time taken by the molecule, यहाँ पर ये भी कैलकुलेट करो बोला है क्या? Whatever. The time taken by the molecule between the two successive collisions, तो उन्होंने वहाँ पर डेल्टा T या I'll call this as simply T वो पूछा है.
तो पहले तो मुझे लैम्बडा का वैल्यू चाहिए. सो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर लैम्बडा एंड व्हिच फॉर्मूला ऑफ लैम्बडा यू विल यूज, पहला वाला या दूसरा वाला, चेक करिए एंड बताइए. व्हिच फॉर्मूला ऑफ लैम्बडा शैल वी यूज. और छोटा कर दो. हाँ बताइए. सेकंड फॉर्मूला. आई हैव टू यूज द सेकंड फॉर्मूला. करेक्ट ना. चलिए सेकंड फॉर्मूला अगर चाहिए तो लेट मी जस्ट टेक दिस. I'll just take it over here. चलिए सब्स्टिट्यूट करते हैं. सो व्हाट इज लैम्बडा इज इक्वल टू बताइए. के बी 1.38 into 10 raised to minus 23. Temperature 300 divided by root 2 is 1.414. Pi is 3.14. D square 1.5 का square 2.25. 10 raised to minus 10 का square 10 raised to minus 20. प्रेशर इज 1 पॉइंट जो भी है, जीरो भी है तो मैं इसको छोड़ ही दूंगा. 10⁵. एनी डाउट्स. लेट्स ट्राई टू सिंप्लीफाई दिस नाउ. सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं इसको. सो दिस इज द वैल्यू ऑफ लैम्बडा. क्या बनेगा लैम्बडा का वैल्यू देखिए. 1.38 इंटू 300 इंटू 10 का पावर इज दिस इज माइनस 23. ये ऊपर आके बनेगा प्लस 20. ये ऊपर बनेगा माइनस 5. समझ में आ गई बात. डिनोमिनेटर में क्या क्या बचा है बताइए. यस दिस इज 1.4 into 3.14 into 2.25. ये 1.4 है, गौर से देखिए अभी. दिस इज 1.4 एंड दिस इज ऑल्सो अप्रोक्सीमेटली 1.4. 1.38 is almost 1.4 taken. ये थोड़ा सा तकलीफ देगा ऐसा लग रहा है. चलिए कोई नहीं. दिस विल बिकम 100. आगे बताइए. 2.25 का डबल कितना होगा. 4.5. मेरे ख्याल से इसको 5 से डिवाइड कर लेते हैं. 5 से. सो दिस विल बिकम लाइक 100 अपॉन 2.25 है ना. इंटू 10 का पावर क्या होगा ये. -3 -8 है ना. सो दिस विल बी लैम्बडा इज इक्वल टू कितना आएगा. 5 24 35 देखिए. दिस विल बिकम 400 अपॉन 9 इंटू 10 रेज़ टू -8. दैट इज इक्वल टू कितना आएगा. 9 चौक 36. 4.4 इंटू सॉरी 44.4 इंटू 10 रेज़ टू -8 मीटर. दिस इज मीन फ्री पाथ. अब उन्होंने एवरेज वेलोसिटी दिया है. एवरेज वेलोसिटी का मतलब क्या दिया है देखिए. दिस इज एवरेज वेलोसिटी इज नथिंग बट द डिस्टेंस कवर्ड डिवाइडेड बाय टाइम टेकन. वो क्या बोल रहे हैं कि टू सक्सेसिव कोलिजन्स के अंदर क्या डिस्टेंस है. ये जो हमने कॉन्सेप्ट देखा ना एवरेज वेलोसिटी का, कि भाई ये दो कोलिजन्स अगर है, इन दो कोलिजन्स के अंदर व्हाट इज इन बिटवीन दीज टू कोलिजन्स, यहाँ पर एक कोलिजन है और यहाँ पर एक कोलिजन है. सो ये डिस्टेंस जिसको हम लैम्बडा कहते हैं और इसको टाइम उसने लिया है t. तो व्हाट इज द वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस कवर्ड डिवाइडेड बाय द टाइम टेकन. यस और नो. डिड यू अंडरस्टैंड दिस. इजंट इट. ये आपको समझ में आ गया मैंने आपको क्या बताया. सो लेट मी जस्ट टेक दिस. ये अगर मैं वहां पर लिख लूं क्या बन जाएगा देखिए. कि बाबा अगर if I am considering this is lambda and time taken is t, so what will be average velocity v is equal to lambda upon t.
तो उन्होंने मुझे v बताया है, मैंने लैम्बडा कैलकुलेट किया है और मुझे t फाइंड आउट करना है. वेरी सिंपल. सो व्हाट इज t इज इक्वल टू, क्या होगा, लैम्बडा कितना दिया है 44.4 इंटू 10⁻⁸ डिवाइडेड बाय वेलोसिटी कितना दिया है 675. अब देखो इसको के लिए 5 वगैरह से क्या कर सकते हैं, अप्रोक्सीमेट करना पड़ेगा मुझे इधर. व्हाट कैन आई दिस अप्रोक्सीमेट दिस टू 60, कैन आई राइट दिस एज 44.4 into 10⁻⁸, and this is 67.8 into 10⁻⁴, 67.5, huh? Now I'll approximate this to 68. 2 से वगैरह वगैरह किससे जा सकता है, 68 या 69, 69 को अप्रोक्सीमेट करूंगा या 66 को कर लूँ अप्रोक्सीमेट, किसको कर लूँ, I'll approximate this to 69. 68 को करना पड़ेगा, कितना 4 से 2 से ऐसा ही कुछ करना पड़ेगा. Well, let's say this is 68. Let me say this is 4111 and 4 1 जा 2 बचा 7 था, बराबर है क्या. Now this is 11.1 upon 17 into 10⁻⁹. 17 1 जा 0.6 जा 102, 9 बचा 90, 90 मतलब 5 जा. So this is 0.65 into 10⁻⁹ second, or I can say it is 0.65 nanosecond, and the answer is very close. You see, A is the answer. Is this okay? You go for the method of approximation, you do get the answer. It's clear to you all. This was a nice question. बहुत बढ़िया question था ये. It's a star question for sure. Is this okay? Any doubts about that? Very clear? I'll go for the next question. अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम. अगला क्वेश्चन इसी टाइप का है. अगला क्वेश्चन इसी टाइप का है, लेकिन उन्होंने थोड़ा अलग करके दिया है. अब ये मॉलिक्यूल्स की बात हो रही थी ना, दिस वाज अबाउट द मॉलिक्यूल्स. मॉलिक्यूल्स जो है वो किसी कंटेनर में घूम रहे हैं. अब वो क्या बोल रहे हैं कि भाई स्पेस में, यहां पर जैसे एक वॉल्यूम के अंदर जैसे मॉलिक्यूल्स घूमते हैं, उसी तरह से स्पेस में 2 एयरक्राफ्ट अगर घूम रही है. इस टाइप का क्वेश्चन है, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, यहां पर 10 स्मॉल प्लेन्स आर फ्लाइंग एट अ स्पीड ऑफ 150 किलोमीटर पर आवर. यही चीज उन्होंने मॉलिक्यूल्स का जो मॉडल है उन्होंने अप्लाई किया कि विच आर द देयर आर 10 प्लेन्स विच आर गोइंग इन द स्पेस, तो वो टकराने का कितना चांस है. समझ में आ गई बात. सो 10 स्मॉल प्लेन्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स 10 है यहां पे. समझ में आ गई बात. एंड दिस विल टेक अस टू द फर्स्ट फॉर्मूला, क्योंकि फर्स्ट फॉर्मूला फॉर मीन फ्री पाथ है ना, उसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स यूज किए जाते हैं. डिड यू अंडरस्टैंड दैट? ये वाला फॉर्मूला मुझे अब की बार यूज करना पड़ेगा भाई, दिस वन. तो n is equal to 10, flying at a speed of, so this is v, average velocity, and this average velocity is actually lambda upon t. तो उन्होंने v दिया है, हम लैम्बडा भी फाइंड आउट करेंगे, और ये दोनों सब्स्टिट्यूट करके मुझे दो प्लेन्स के बीच में कितने देर तक टकराव नहीं होगा, मतलब टाइम ड्यूरेशन बिटवीन द टू सक्सेसिव कोलिजन्स, ये टी फाइंड आउट करना है. वो टी हमारा आंसर होगा जो कि आवर्स में है यहाँ पे. डू यू अंडरस्टैंड? इज दिस क्लियर? चलिए शुरू करते हैं. दे आर फ्लाइंग एट अ स्पीड ऑफ 150 किलोमीटर पर आवर इन टोटल डार्कनेस in an air space that is
दिस मच इन वॉल्यूम। तो यहाँ पर उन्होंने वॉल्यूम दिया है, देखिए मुझे वॉल्यूम की भी जरूरत पड़ेगी, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी मिल गए, यस और नो। अब सिर्फ रह जाता है डायमीटर। तो वो जो प्लेन है ना, जो प्लेन उड़ेगा, तो दे हैव अप्रोक्सीमेटेड दिस इन द फॉर्म ऑफ अ molecule of certain diameter. You are one of the planes, you are in one of the planes flying at random within this space, बहुत डरा रहे हैं, with no way of knowing where the other planes are. यार ये क्या वीडियो, ये कोई गेम है? On the average, about how long a time will elapse between near collision with your plane? क्यों यार, बहुत डरावना सवाल है. But you have to find out what is the average time there. Time. Assume for this rough computation that a safety region around the plane can be approximated by a sphere of radius 10 meter. Sphere of radius is 10 meter, मतलब diameter is 20 meter, and that's it. समझ में आ गया? क्या बोले? क्या बोले? हाँ अच्छा, अभी मेरे को सुनाई दिया, अभी तुम लोग बोल रहे हैं इसको कुछ ज्यादा ही सुनाई दे रहा है। हाँ, दिस इज वन। नाउ ये v ऊपर चला जाएगा तो ये वॉल्यूम कितना आएगा भाई? 20 इंटू 20 इंटू 1.5 किलोमीटर क्यूब। तो देखिए ये है वेलोसिटी, उन्होंने किलोमीटर पर आवर दिया है, सो आई कीप द डिस्टेंस इन किलोमीटर, टाइम इन आवर्स, क्योंकि फाइनल टाइम आई वांट इन आवर ओनली ना। हेलो, करेक्ट ना? तो डिस्टेंस अगर मुझे किलोमीटर में लिखना है तो दिस इज 20 इंटू 10⁻³ किलोमीटर ना रे, मतलब 2 इंटू 10⁻² किलोमीटर ना रे, है कि नहीं रे? राइट ना? सो दिस इज गोइंग टू बी व्हाट, डिवाइडेड बाय √2, √2 या √2 is 1.44, √2 is 1.414, pi is 3.14, d square 2 का स्क्वायर 4 and 10⁻² का स्क्वायर -4 into number of molecules is 10. Is that understood? Is this clear to you all? Hello, hello. Am I clear to you all? चलिए, तो यहाँ से मुझे ये तो मिल गया लैम्बडा. So what will be lambda is equal to? Lambda is equal to, this is 2 to the 4, 4 into 1.5. देखिए 2 to the 4, 400 into 1.5 divided by क्या होगा? Divided by this is 1.4 into 3.14 into 4 into 10 का पावर देखिए -4 + 1 is -3 आएगा इधर. समझ में आ गई बात? तो दिस 4 गेट्स कैंसिल विद दिस 4. अब जो भी कुछ बचा है वहां पे आई विल राइट दिस एज 1.5, 1.4, 0.14 इंटू 10 का पावर देखिए -3 ऊपर जाके +3 और +2 इज +5. दिस इज बेसिकली लैम्बडा. ये मेरा फाइनल आंसर है नहीं है तो आई विल कीप इट एज इट इज. अब उन्होंने यहाँ पर अपने को वेलोसिटी इज इक्वल टू लैम्बडा अपॉन टी. सो व्हाट इज टी इज इक्वल टू लैम्बडा, लैम्बडा इज दिस अपॉन वी. वी जो दिया है उसको एज इट इज लेना पड़ेगा मेरे को 150. इज दैट फाइन? बराबर है क्या? सो इसको कुछ कर सकते हैं क्या सिंप्लीफाई इसका? I'll write this as 1.5, 1.4, 3.14 and upon V भी V कितना दिया बोले? 150 किलोमीटर पर आवर. So this is 150 into 10⁵. तो भाई इसमें से एक जीरो गया, ये 4 बन जाएगा. You see, isn't it? अब इसको मुझे सिंप्लीफाई करना है, कैसे करेंगे बाबा? कैन आई राइट दिस एज, अरे हाँ ये तो गया ना 15 एंड दिस इज 0.1, तो मुझे बस इसका रेसिप्रोकल लेना है. वो रेसिप्रोकल इज बैड. सो दिस इज गोइंग टू बी 10⁻³ मतलब बेसिकली 1000 डिवाइडेड बाय 1.4 इंटू 3.14. आई विल अप्रोक्सीमेट दिस टू 3. हो सकता है ना? तो ये बन जाएगा 3 1 एंड दिस विल बिकम 333.3333. अब इसको डिवाइड कीजिएगा 333 अपॉन 14. तो 14 मतलब 14 का टेबल आएगा ना तुम लोगों को? 14 1 14 2 28 5 53
53, तो 54 ही ले लो ना। 54 लेंगे, नहीं 53, 14 14 3 42, ओके, 3 जा 40, 42, 11, 110, 8 जा 8 जा लेते हैं क्योंकि 112 आता है, वो 110 के नजदीक है, अप्रोक्सीमेशन हो जाएगा। तो 238 किलोमीटर, दिस इज 238 आवर्स। व्हाट इज द नियरेस्ट आंसर? 238 आवर्स का नियरेस्ट आंसर डी, 225, दैट्स द करेक्ट आंसर। इज दिस क्लियर टू ऑल? एनी डाउट्स? समझ में आ गया? जतिन, प्रोसीड। या दैट्स द करेक्ट आंसर। हाँ पता है मेरे को, कभी कभी आता है, मेरा भी करेक्ट आता है कभी कभी। एनी डाउट्स अबाउट दैट? चलिए आगे बढ़ते हैं। लेट मी टेक दिस फर्दर। We are on the last question of this chapter now. Last two questions to be precise. Last question, question number 9 देखते हैं। Yes. So I think this was a star or no? नहीं ना, इजी था ये। बिकॉज वी वेर नोइंग द क्वेश्चन, मतलब आपने पहले ही उसका इंट्रोडक्शन दे के रखा, भाई ये वाला फॉर्मूला ऐसा है, ये है, ऐसे करके करना है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। टू आइडेंटिकल कंटेनर्स, two identical containers A and B with frictionless pistons. Yep. A and B with frictionless pistons contain same ideal gas. Identical containers and same ideal gas at the same temperature. ये डेटा इससे आप लोग मुझे एक्सट्रैक्ट करके बता दो। At the same volume V. You have to extract the data and tell me the given data when I'm underlining these things. Mass of gas in A is Ma, that of in B is Mb. Two identical containers, तो दोनों का वॉल्यूम V है, सेम आइडियल गैस है, सेम टेम्परेचर है, मॉलिक्यूलर वेट भी सेम होगा ना इसका, सेम आइडियल गैस है, तो सिर्फ उनके मासेस अलग है। मास ऑफ द गैस A and mass of the gas B is different. The gas in each cylinder is now allowed to expand isothermally. Allowed to expand isothermal constant temperature. Iso constant, thermal temperature, T is equal to constant. Allowed to expand isothermally to the same final volume. Same final volume. So 2V and 2V is the same final volume. The changes in the pressure in A and B are found to be, so delta P and 1.5 delta P. These are the changes in the pressure. क्योंकि दोनों के मासेस अलग थे ना, इसलिए प्रेशर अलग अलग हो जाएगा उनका. They have not bothered anything about initial and final pressure, but change in the pressure they have given here, delta P and 1.5 delta P. So they say, then what is the ratio of mass of gas A and mass of gas B? A good question, a really good question. अब यहाँ पे उन्होंने बोला है the process is isothermal. Isothermal process. Isothermal process का मतलब है temperature is equal to constant. आइडियल गैस इक्वेशन बोलता है PV इज इक्वल टू nRT, उसमें से T अगर कांस्टेंट हो जाएगा तो बेसिकली PV इज इक्वल टू कांस्टेंट. डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? PV इज इक्वल टू कांस्टेंट का मतलब है प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, सो इट्स अ बॉयल्स लॉ. हेलो, इट्स अ बॉयल्स लॉ. समझ में आ गई बात? नाउ अगर मैं चेंबर ए और चेंबर बी के लिए ये चीजें अप्लाई कर दूं, तो what I'm going to get there is delta P for the chamber A
इज इक्वल टू, इसका मतलब है यहां पर देखिए, अब गैस को उन्होंने क्या किया, एक्सपांड किया है। गैस का एक्सपांशन का मतलब क्या है, वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग। अगर वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है और वो दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो प्रेशर इज डिक्रीजिंग, बराबर है। द प्रेशर इज गोइंग टू डिक्रीज। इसका मतलब है इनिशियल प्रेशर, प्रेशर इनिशियल फॉर ए माइनस प्रेशर इनिशियल फॉर, सॉरी, प्रेशर फाइनल फॉर ए। Initial pressure is greater than, pressure initial is greater than pressure final. Do you understand that? हेलो, ओके। आइडियल गैस इक्वेशन अप्लाई कर दीजिएगा इस डेल्टा पी के लिए। तो व्हाट विल बी द, अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि भाई पी वी इज इक्वल टू एन आर टी और पी इज इक्वल टू एन आर टी अपॉन वी, ये बन जाएगा ना। तो उसके नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस ए पता नहीं है कितने, तो आई कॉल दिस एज एन ए, इजंट इट। अगर ये वाला फॉर्मूला मैं इधर अप्लाई कर दूं तो इट विल बी एन ए आर इंटू, उसका टेम्परेचर के बारे में कुछ बोला है क्या, नो, हाँ इट्स आइसोथर्मल ना, तो टी अपॉन वॉल्यूम कितना है उसका, इनिशियल वॉल्यूम होगा V माइनस फाइनल वॉल्यूम क्या है, इट विल बी एन ए आर टी अपॉन फाइनल वॉल्यूम इज 2V। इज दैट ओके? इज दैट क्लियर? So what is delta P is equal to, can I take something common? Yeah, I can. What can I take common? N R T upon V, पूरा कॉमन ले लिया, मेरे को मिलेगा एक माइनस आधा इज आधा। So what is delta P is equal to, बताइए प्लीज। Delta P is equal to nRT upon 2V. This is for chamber A. Any doubts about this? Hello. Let us do the same kind of calculation for chamber B over here. And I know you will help me in that. Come on, tell me. So what is the change in the volume? 1.5 delta P is equal to P initial for B minus P final for B. That is equal to what? सेम काइंड ऑफ कैलकुलेशन, सब सेम रहेगा यहाँ पे, बराबर है क्या? क्योंकि यहाँ पर एन बी होगा, बाकी सब सेम होगा। दिस इज एन ए, या एक मिनट, आई जस्ट करेक्ट दिस, ये एन ए है, वैसा ही होगा सब का सब वहां पर, सिर्फ ये 1.5 डेल्टा पी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी इंटू आर इंटू टी अपन, उसका वॉल्यूम भी वैसा ही का वैसा ही है ना, सो इट विल बी 2 टाइम्स वी। समझ में आ गई बात? इज दिस ओके? नाउ लेट मी टेक द रेशियो ऑफ दीज टू। So when I'll take the ratio of these two, what am I going to get there? This is equation 1 and this is equation 2. Divide equation 1 upon equation 2, we get, क्या get we? Delta P upon 1.5 times delta P is equal to क्या होगा? इधर होगा सिर्फ Na और इधर होगा Nb, समझाना रे? So this gets cancelled. So what do you say here now? अब मुझे ये बताइए कि what is number of moles? So what am I going to get there? This will give me Na upon Nb is equal to 10 upon 15, that is 5 2s and 5 3s. But what is Na, by the way? Number of moles of a gas is nothing but number of moles of any gas for that sake. उसके दो फॉर्मूले हैं नंबर ऑफ मोल्स के, एक होता है मास ऑफ द गैस अपॉन मास ऑफ द गैस अपॉन मॉलिक्यूलर मास, बराबर है ना। लेकिन इन्होंने मास ऑफ द गैस को यहाँ पर Ma और Mb बोल दिया है। जनरली हम टोटल मास को कैपिटल एम बोलते हैं, देन मॉलिक्यूल के मास को स्मॉल एम बोलते हैं, देन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ऐसा होता है ना सब कुछ, बराबर है क्या? लेकिन इन्होंने टोटल मास ऑफ द गैस को ही स्मॉल एम ए एंड स्मॉल एम बी बोल दिया है, तो दैट्स फाइन। सो और ये अगर यहाँ पर मैं लिख लूंगा तो दिस विल बिकम मास ऑफ द गैस ए डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास, बट ये आइडेंटिकल गैसेस है, मास ऑफ मास गैस बी अपॉन मॉलिक्यूलर मास, दिस इज आइडेंटिकल गैस, तो ये कैंसिल हो जाएगा। सो व्हाट इज द रेशियो ऑफ एम ए अपॉन एम बी इज 2/3, और व्हेन आई क्रॉस मल्टीप्लाई दिस विल बिकम 3 times एम ए is equal to 2 times mb, and what is that answer? C is the answer. Any doubts about this? स्टार है ये? पता नहीं, आप डिसाइड कर लो। And here I go for the last question. Last question. Last question.
Now, before I start with this question, I want to take you all to the first lecture that we have done before I begin for this question. अगर आपको याद होगा, if you remember, the first chapter, first question, जहाँ पर हमने pressure exerted by the ideal gas हमने ये किया था फाइंड आउट, तो उसकी शुरुआत कैसे की थी जरा आपको याद दिला दूं. Let me just give you an insight. What we did is number of molecules थे, वो मॉलिक्यूल यहाँ पे देखो क्या कर रहा है, वो मॉलिक्यूल यहाँ पे जाके कोलाइड करता है ना इधर, तो उसका वेलोसिटी v होता है, वापस आता है उसका वेलोसिटी माइनस v होता है. वी आर टॉकिंग अबाउट इट्स कोलिजन ओनली इन द x डायरेक्शन. सो इसका इनिशियल मोमेंटम होता है m इंटू वी एक्स राइट साइड में, फाइनल मोमेंटम माइनस एम वी एक्स, चेंज इन द मोमेंटम final minus initial, that is minus 2 mvx. This is the momentum lost by the molecule and same is the gained by the molecule, gained by the wall. बराबर है क्या? So exchange of momentum. So अगर momentum lost by the molecule is minus 2 mvx, then momentum gained by the wall will be plus 2 mvx. Correct? And then we found out the time period between the two successive collisions delta t, and this is how I find out. So this will be the rate of change of momentum, and this is how I found out the force exerted by the gas. Force upon area will give me the pressure exerted by the gas. बराबर है क्या? ये था ना हमारा. This was the approach. ये वाला theorem भी important है. The two theorems, एक pressure exerted by the gas का और दूसरा स्पेसिफिक हीट मेयर्स रिलेशन. एब्सोल्युटली करेक्ट. ये दो ही मेरे ख्याल से इसमें दो ही डेरिवेशन है, इसके अलावा कुछ नहीं है. बाकी फिर अपने को फॉर्मूला कन्वर्ट वाली चीजें हैं. एनीवेज, कमिंग बैक टू ये वाला आपको याद, मतलब समझ में आ गया. मैंने आपको ये ब्रीफली रिफ्रेश कर दिया. नाउ द सेम अप्रोच वी आर गोइंग टू फॉलो फॉर दिस. इसी तरह का अप्रोच हम इस क्वेश्चन के लिए अप्लाई करने वाले हैं. इसी तरह का अप्रोच हम इस क्वेश्चन के लिए करने वाले हैं. यह देखिए, और कौन बोलता है कि सीईटी जेई में प्रूफ्स नहीं पूछते, तो इसको मैं एक्सप्लेन कर लेता हूं. चलिए देखते हैं क्या दिया है यहां पे. देखिए, कंसीडर अ रेक्टेंगुलर ब्लॉक. कंसीडर अ रेक्टेंगुलर वुडन ब्लॉक. ये एक वुडन ब्लॉक है. ठीक है. moving with velocity v0 in the gas. So this is moving with velocity v0 in the gas at temperature T and mass density rho. Rho is the density. Assume the velocity is along x-axis and the area of cross section of the block perpendicular to v0 is a. तो इसका जो एरिया है वो area of this block is a. area. The drag force क्या करता है, उसको ड्रैग करता है. ड्रैग फोर्स इसको अपोज करेगा जाने के लिए गैस मॉलिक्यूल्स की वजह से. देखो पानी में अगर आप जाने की कोशिश कर रहे हो तो यू आर ड्रैग ना, दैट्स अ ड्रैग फोर्स. So there will be a force exerted by these gas molecules which is going to act in the opposite direction. इस अपोजिट डायरेक्शन में उसको अपोज करने वाला जो फोर्स होगा उसे हम कहते हैं ड्रैग फोर्स. ओके, द ड्रैग फोर्स ऑन द ब्लॉक इज, दिस इज द फॉर्मूला. अब हम बोलते हैं कि स्पीड ऑफ द ब्लॉक इज v0. ओके, क्रॉस सेक्शनल एरिया पता है, टेम्परेचर दिया है. let n is the number of molecules per unit volume. Number of molecules per unit volume. मोल्स नहीं है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है पर यूनिट वॉल्यूम. n इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम. ठीक है, मतलब इसमें 1 मीटर क्यूब इज द वॉल्यूम, v इज इक्वल टू 1. समझ में आ गई बात? ठीक है. एंड लेट अस से v
is the RMS speed of the molecules. RMS speed of molecules. ठीक है, v is the RMS speed of the molecules. So यहाँ पर फ्रंट फेस पर जो होगा कि भाई यहाँ के जो मॉलिक्यूल्स की अगर हम बात करें, दिस मॉलिक्यूल्स दे आर ओनली इन एक्स डायरेक्शन ना, ये उन्होंने मेंशन किया है. सो दिस इज अवर एक्स डायरेक्शन, दिस इज अवर एक्स डायरेक्शन. ओके, नाउ लेट्स कम बैक हियर. तो हम बात करते हैं कि भाई फ्रंट फेस की अगर बात करें, एट फ्रंट फेस की अगर हम बात करें तो मॉलिक्यूल जो है वो इस दिशा में जाएगा, उसको अपोज करने की कोशिश करेगा. समझो द मॉलिक्यूल का वेलोसिटी है v और m is the mass of the molecule. Let us say m is mass of each molecule. m is the mass of molecule. तो मुझे बताइए कि फ्रंट फेस का मॉलिक्यूल ऐसे जा रहा है और रियर फेस का मॉलिक्यूल जो है वो इस दिशा में जा रहा है, हैविंग वेलोसिटी v and m. अब आप लोग मुझे बताओगे कि इस अवस्था में व्हाट विल बी द रिलेटिव स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल विथ रिस्पेक्ट टू फ्रंट फेस. रिलेटिव स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल विथ रिस्पेक्ट टू फ्रंट फेस मतलब आपको मैं पूछ रहा हूं कि देखो आपकी गाड़ी, आप गाड़ी से जा रहे हो, आपका स्पीड है 20, सामने एक गाड़ी है वो ऐसे आ रही है, उसका स्पीड है 30. सो व्हाट इज द डिफरेंस इन द वेलोसिटीज? हाँ, 20 and 30. अच्छा मैं आपको सिंपल क्वेश्चन पूछता हूं, आप ऐसे जा रहे हो, दो केसेस है, दो केसेस. आपके हाथ में पत्थर है, ठीक है, एक गाड़ी है जो आपका 20 है स्पीड, ठीक है, आपका स्पीड कितना है 20 है, और बाजू में आपकी एक गाड़ी जा रही है वो 10 से जा रही है, और आप अगर उसको पत्थर ऐसे मारते हो वो तेज लगेगा या उल्टी दिशा में जाने वाली गाड़ी को पत्थर तेज लगेगा? उल्टी दिशा में. ये कॉमन सेंस है, समझ में आ गया ना? आपके साथ जाने वाली गाड़ी को पत्थर जोर से लगेगा या अपोजिट डायरेक्शन में जाने वाली गाड़ी को पत्थर जोर से लगेगा? क्यों? क्योंकि वहां पर रिलेटिव वेलोसिटी इज डिफरेंट. Are you, if I want to find out the difference in the velocities here, if I want to find out the difference in the velocities here, what is the meaning of relative velocity? Relative velocity जो होता है it is equal to va minus vb, va bar minus vb bar. तो यहाँ का जो वेलोसिटी होगा, रिलेटिव स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल, दिस इज रिलेटिव स्पीड वेलोसिटी ऑफ ए रिलेटिव टू बी होता है, ये फॉर्मूला है उसका. रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ मॉलिक्यूल विथ रिस्पेक्ट टू block, with respect to block, which is given by velocity of the block minus velocity of the molecule. It is given by Vb with respect to velocity of molecule with respect to block. Is that understood? उल्टा लिखा मैंने यहाँ पे velocity. तो इनके जो velocity का difference होगा वो कितना होगा मुझे बताइए. यहाँ पे velocity of the molecule minus velocity of the block. तो velocity of the molecule को अगर मैं v बोलता हूँ, अगर इसका वेलोसिटी प्लस v है तो ये उसके अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब माइनस ऑफ माइनस वी जीरो. डिड यू अंडरस्टैंड दिस? अगर अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो वेलोसिटीज गेट एडेड. कंफ्यूज हो रहे? हाँ हो रहे तो हाँ बोलने का. मैंने आपको सिंपल क्वेश्चन पूछा कि एक गाड़ी ऐसे जा रही है 20 से और दूसरी गाड़ी ऐसी जा रही है 30 से, तो व्हाट इज द डिफरेंस इन द वेलोसिटीज? 50 का डिफरेंस है. हाँ या ना? नहीं, एक ऐसे जा रही है और दूसरे अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, तो व्हाट इज द डिफरेंस इन द वेलोसिटीज?
11th का कॉन्सेप्ट है सी हियर। देखिए यहाँ पे, या आई टेल यू, एक मॉलिक्यूल है यहाँ पे, ऐसा जा रहा है मॉलिक्यूल। आई कंसीडर द रियर साइड वाला कॉन्सेप्ट। रिलेटिव वेलोसिटी का मतलब क्या है? वेलोसिटी ऑफ ए रिलेटिव टू बी, वेलोसिटी ऑफ ए रिलेटिव टू बी इज वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। कैसे समझाऊं आपको, कहाँ से? देयर आर थ्री कार्स ए बी एंड सी। ए इस डायरेक्शन में जा रहा है से 20-30 किलोमीटर पर आवर। बी इसी डायरेक्शन में जा रहा है से 50 किलोमीटर पर आवर। सी जो है वो इसी डायरेक्शन में जा रहा है 10 किलोमीटर पर आवर। डी है वो इस डायरेक्शन में जा रहा है से 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, दे आर द डिफरेंट कार्स। आई वांट टू फाइंड आउट, और तुम बैठे हो कार ए के अंदर, तुम बैठे हो कार ए के अंदर, तुम्हारे नजरिए से बी का स्पीड क्या है? तुम अगर कार ए के अंदर हो तो व्हाट इज द कार बी का स्पीड अकॉर्डिंग टू यू? 20 किलोमीटर, करेक्ट है? ठीक है, वेरी करेक्ट। दिस इज कॉल्ड एज वेलोसिटी ऑफ बी रिलेटिव टू ए। दिस इज कॉल्ड एज वेलोसिटी ऑफ बी रिलेटिव टू ए। बी के नजरिए से ए का वेलोसिटी, बी के नजरिए से, सॉरी, ए के नजरिए से बी का वेलोसिटी, बिकॉज दिस इज फ्रॉम योर पॉइंट ऑफ व्यू, and it is given by VB bar minus VA bar। चेक करिए, that is equal to 50 minus 30 is equal to 20। yes or no? तुम्हारे नजरिए से C का क्या वेलोसिटी होगा? तुम 30 से जा रहे हो, वो 10 से जा रहा है, मतलब तुम आगे निकल के जाओगे, वो पीछे रहता जाएगा, मतलब तुम्हारे नजरिए से वो उल्टा जा रहा है 20 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी से। यस और नो? उल्टा जा रहा है तो माइनस आएगा, उसका वेलोसिटी आएगा। तो चेक करती है, तो वेलोसिटी ऑफ c रिलेटिव टू a, इट इज गिवन बाय वेलोसिटी ऑफ c माइनस वेलोसिटी ऑफ a। नाउ अगर आपको इस डायरेक्शन को प्लस बोलते हो तो नेचुरली ये वाला डायरेक्शन माइनस होगा आपका। सो व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ c इज 10, व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ a is 30, so what is the relative velocity of c with respect to a? it is minus 20। माइनस का मतलब है वो आपके नजरिए से पीछे जा रहा है 20 किलोमीटर पर आवर से। इज दैट अंडरस्टूड? ठीक है, आपके नजरिए से d का वेलोसिटी क्या होगा? लेकिन उल्टा, मतलब -70, क्योंकि तुम अपनी वेलोसिटी प्लस समझोगे। आप ऐसे जा रहे हो, ऐसे नहीं, इधर ऐसे, सॉरी, ऐसे जा रहे हो आप लोग, बराबर है क्या? वी आर गोइंग लाइक दिस, इस तरीके से हम इस तरफ जा रहे हैं। अगर हम इस तरफ जा रहे हैं 30 किलोमीटर पर आवर, तो डी पीछे जा रहा है आपके हिसाब से, अपना उसका खुद का 40 का स्पीड, और आपकी वजह से, आपके स्पीड की वजह से उसमें 30 भी ऐड हो रहा है। तो तुम्हारे नजरिए से व्हाट इज डी का वेलोसिटी? इट इज 70 किलोमीटर पर आवर। यस और नो? लेट मी डू दिस हियर। तो वेलोसिटी ऑफ डी रिलेटिव टू ए is equal to velocity of d minus velocity of a। velocity of d is in the opposite direction, that is minus 40 minus 30 is equal to minus 70। understood? So what is velocity of any body, say a, relative to b is equal to velocity of a minus velocity of b, and of course with the sign conventions, so of course with the sign conventions। और जिसके नजरिए से आप देख रहे हो उस डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लो, मतलब एक ही हिसाब से देख रहे हो। अब यही चीजें आप बी के लिए, सी के लिए, डी के लिए भी कर सकते हो। इज दैट अंडरस्टूड? इज दैट अंडरस्टूड? समझ में आ गई बात? चलिए,
तो रिलेटिव वेलोसिटी आपको समझ में आ गया। नाउ लेट्स कम बैक हियर, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में चले आते हैं। अब मुझे बताइए ब्लॉक के हिसाब से इसका वेलोसिटी क्या होगा, व्हाट इज द रिलेटिव स्पीड बोल सकते हैं, वेलोसिटी नहीं तो स्पीड। हाँ, सो अगर ब्लॉक का वेलोसिटी जो है वो v0 बोलते हैं, तो ये पीछे जा रहा है, समझ में आ रहा है, आर यू अंडरस्टैंडिंग दैट? हाँ, तो वो वेलोसिटी ऑफ मॉलिक्यूल माइनस वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक, तो वेलोसिटी ऑफ मॉलिक्यूल माइनस हम बोल सकते हैं, और इस वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक को मैं प्लस बोल सकता हूं। तो व्हाट डू यू गेट देयर, दिस इज इक्वल टू माइनस वी जीरो। इज दिस क्लियर? तो दोनों जब अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो वो ऐड हो जाता है, यस और नो? यहाँ पर डायरेक्शन की अगर मैं बात ना करूं, इफ आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द डायरेक्शन, डायरेक्शन को अगर मैं छोड़ दूं, तो ये मैं v प्लस वी जीरो ही ले लूंगा। दिस इज द रिलेटिव स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल विद रिस्पेक्ट टू ब्लॉक, तो ये बन जाएगा v प्लस वी जीरो, मतलब उनके मैग्नीट्यूड्स इन शॉर्ट ऐड हो रहे हैं। इज दिस ओके? In short, their magnitudes are going to get added. Is this okay? Similarly, अगर हम इसकी बात करेंगे, if I'm talking about this, तो मॉलिक्यूल का स्पीड ज्यादा होगा, तो मॉलिक्यूल के स्पीड के हिसाब से ब्लॉक का स्पीड ये क्या होगा? व्हाट इज द रिलेटिव फॉर द रियर फेस? फॉर द रियर फेस के यही कैलकुलेशन हम करेंगे, तो ये होगा रिलेटिव स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल विथ रिस्पेक्ट टू ब्लॉक जो हो जाएगा, दैट विल बिकम v माइनस वी जीरो। इज दिस क्लियर टू ऑल? ये मैंने बता दिया कि भाई वो सेम डायरेक्शन में है तो उनका वेलोसिटी माइनस होता है, और अपोजिट डायरेक्शन में उनका वेलोसिटी ऐड होता है। निग्लेक्टिंग द साइन कन्वेंशन, आई जस्ट एडेड द स्पीड्स का मैग्नीट्यूड्स, क्योंकि यहाँ पर मुझे स्पीड चाहिए ना कि वेलोसिटी। स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी। आई होप यू अंडरस्टूड दैट, यस और नो? इज दिस क्लियर? ओके फाइन। तो अब यहाँ पे जब ये मॉलिक्यूल हेड ऑन कोलिजन करता है इसके ऊपर, ये एक मॉलिक्यूल इसके ऊपर हेड ऑन कोलिजन करेगा, तो व्हाट विल बी द मोमेंटम? उनका रिलेटिव स्पीड इतना है, तो व्हाट विल बी द चेंज ऑफ मोमेंटम? ये हमने फर्स्ट लेक्चर में किया था इन रिगार्ड्स टू दैट, इन कनेक्शन विद दैट दिस इज गोइंग टू बी कि भाई अगर वो आके यहाँ पर इसके ऊपर पटक जाता है तो व्हाट इज द मोमेंटम? मोमेंटम कितना होता है? इट इज, देखिए ना यहाँ पे, initial momentum m into vx, final momentum minus m into vx. So what is change in the momentum? Momentum gained is 2mvx, 2mv. तो वही चीज अगर मैं इधर अप्लाई करूंगा तो what will be the gain in the momentum? Momentum, what can I say here? Momentum transferred to the block per collision. Momentum gained by block in one collision. एक कोलिजन के अंदर इसको कितना मोमेंटम मिलेगा? इट विल बी 2 times मास ऑफ द मॉलिक्यूल इनटू द स्पीड देयर v प्लस वी जीरो। डिड यू अंडरस्टैंड दिस? समझ में आ गया? इजंट इट? ये है फ्रंट फेस के लिए, और वही अगर मैं रियर फेस के लिए अप्लाई करूंगा तो वो बन जाएगा 2m v माइनस वी जीरो। आई होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल। इज दिस ओके? बराबर है क्या? नाउ so what will be the मैं यहाँ पे मान के चलता हूं कि यहाँ पर अगर टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, इफ देयर आर n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो उसमें से आधे मॉलिक्यूल्स इस तरफ जा रहे हैं और आधे मॉलिक्यूल्स इस तरफ जा रहे हैं, सो दैट ऑन एन एवरेज द गैस इज स्टेशनरी। अगर आधे मॉलिक्यूल्स इधर जा रहे हैं, आधे मॉलिक्यूल्स इधर जा रहे हैं, तो व्हाट विल बी द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द गैस इज जीरो। Is this clear to all? N by 2 molecules going in this way, N by 2 molecules going in this way. So what I say here ki what will be the number of collisions is equal to, it will be n by 2 into 2m into v plus v0 in time delta t, in time डेल्टा टी टाइम में कितने नंबर ऑफ कोलिजन्स होंगे? अब देखिए डेल्टा टी टाइम में क्या होगा, डेल्टा टी टाइम में ये जो है
वो आगे बढ़ेगा इतने वेलोसिटी से, v0 वेलोसिटी से। आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग दैट? ये जो है वो आगे बढ़ेगा उतने वेलोसिटी से। तो उस ब्लॉक ने डेल्टा टी टाइम में कितना डिस्टेंस कवर किया है? अगर उसका वेलोसिटी है v0 और डिस्टेंस वो कवर करेगा समझो कि x and time is delta t, so it will be covering what distance? x into x is equal to कितना आएगा ये बोलिए? The distance that it will cover, x is equal to v0 into delta t. This is the distance it will cover. और फिर इसका जो एरिया है भाई, इसका जो एरिया है वो कितना है? a। इसने डिस्टेंस कवर कितना किया है? v0 इंटू डेल्टा टी। मतलब ये जो पूरा वॉल्यूम है, इस वॉल्यूम के अंदर कितने मॉलिक्यूल्स होंगे ये मुझे पता करना। आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग देयर? सो इतने मॉलिक्यूल्स जो है वो इसके ऊपर हिट करेंगे, क्योंकि ये जो ब्लॉक है वो मूव होता जा रहा है विद सर्टेन वेलोसिटी v0। यस और नो? आर यू अंडरस्टैंडिंग दैट? हाँ, वी विल कैलकुलेट द वॉल्यूम। आई एम ट्राइंग टू कैलकुलेट द वॉल्यूम। सो वॉल्यूम ऑफ द ब्लॉक विल बी कितना होगा? सो वॉल्यूम ऑफ दिस ब्लॉक is given by it is covering distance v0 into delta t into area. So ये रहा उसका वॉल्यूम। डू यू अंडरस्टैंड दैट? ये रहा उसका वॉल्यूम। अब देखिए हमने क्या बोल दिया है कि भाई यूनिट वॉल्यूम में मतलब अगर वॉल्यूम है 1 तो उसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं? n। तो इतने वॉल्यूम में कितने? अब n अगर हम ले रहे हैं, लेकिन दैट इज फॉर द फ्रंट फेस, तो यहां पर मुझे n/2 लेना पड़ेगा और इधर n/2 होंगे रियर फेस के लिए। डू यू अंडरस्टैंड? n/2 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ट्रैवलिंग इन दिस डायरेक्शन एंड n/2 मॉलिक्यूल्स ट्रैवलिंग इन द अदर डायरेक्शन। समझ में आ गया? तो इतने के लिए कितने होंगे? इसके लिए इतना, तो इसके लिए कितना? इंटू डेल्टा टी इंटू डेल्टा टी इंटू ए। इसके लिए कितने होंगे? आई जस्ट हैव टू मल्टीप्लाई हियर ना। तो कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे? इट इज v0 डेल्टा टी ए इंटू n/2। समझ में आ गया? इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मतलब उतने नंबर ऑफ कोलिजन्स। बराबर है क्या? तो एक कोलिजन में इतना मोमेंटम, नंबर ऑफ कोलिजन्स इन टाइम डेल्टा टी इज n/2। एक मिनट, यहां पर नंबर ऑफ कोलिजन्स के लिए मुझे क्या लिखना पड़ेगा? नंबर ऑफ कोलिजन्स हो जाएंगे इतने। व्हाट इज दैट? दैट नंबर इज गिवन बाय v0 डेल्टा टी ए इंटू n/2। अब मुझे बताइए कि एक कोलिजन में अगर इतना है, एक कोलिजन में तुम्हारा इतना मोमेंटम है, तो इतने नंबर ऑफ कोलिजन्स में इतने नंबर ऑफ मोमेंटम कितना होगा? टोटल मोमेंटम इन टाइम डेल्टा टी कितना हो जाएगा बताइए? इट विल बी 2mv प्लस v0 इंटू, एक मिनट ना, यहाँ पे देखिए मैंने सिर्फ इसका वेलोसिटी लिया है ना। आई हैव टेकन ओनली दिस वेलोसिटी, लेकिन उस यहाँ पर व्हाट इज दैट, मॉलिक्यूल्स भी तो जा रहे हैं ना। मतलब ऐसा सोचिए कि एक स्टेशनरी मॉलिक्यूल्स है और ये जा रहा है, ब्लॉक जा रहा है, तो केस अलग होगा। और मॉलिक्यूल्स भी मूव हो रहे हैं और ये भी जा रहा है, तो वहां पर वेलोसिटी ज्यादा लेना पड़ेगा मुझे। प्लीज अंडरस्टैंड। सी सी इसके लिए मैं आपको एग्जांपल दूंगा। रेन में आप अगर स्टेशनरी हो तो बूंदे ज्यादा लगती नहीं है, लेकिन अगर आप जा रहे हो तो बूंदे बहुत तेजी से लगती है एंड मोर नंबर ऑफ ड्रॉपलेट्स फॉल ऑन यू। यस और नो? तो इसका मतलब है यहां पर मुझे v0 नहीं लेना पड़ेगा, v प्लस v0 लेना पड़ेगा भाई। v प्लस v0, दिस हैज टू बी v प्लस v0। दिस शुड बी
v प्लस वी जीरो इंटू डेल्टा टी। यहाँ पर भी जो होगा v प्लस वी जीरो होना चाहिए, दिस शुड बी v प्लस वी जीरो, ये भी v प्लस वी जीरो होना चाहिए, v प्लस वी जीरो। तो यहाँ पर v प्लस वी जीरो का स्क्वायर हो जाएगा, दिस इज v प्लस वी जीरो। आर यू अंडरस्टैंडिंग दैट? मुझे वो वेलोसिटी दुगना वेलोसिटी लेना, मतलब दोनों का वेलोसिटी लेना पड़ेगा। सो द टोटल मोमेंटम ट्रांसफर्ड विल बी, नंबर ऑफ कोलिजन्स विल बी v प्लस वी जीरो होगा ये भी। So it will become 2m v plus v0 square delta t into a into n by 2. It is going to be something like this. Are you understanding that? अब इसमें टोटल मोमेंटम, तो व्हाट विल बी द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के लिए मुझे डेल्टा टी से डिवाइड करना पड़ेगा। डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग दी? ये है चेंज ऑफ मोमेंटम। तो मुझे अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम चाहिए तो ये होगा डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी, which is the rate of change of momentum. It will be given by 2m v plus v0 का square into a into n by 2. Now this is calculation for the front face, इसीलिए इसी टाइप का calculation for the rear face भी हो जाएगा। डेल्टा p by डेल्टा t is equal to 2m v minus v0 bracket square a into n by 2. Is this okay? Is that clear? ये मोमेंटम अगर इस डायरेक्शन में होगा तो ये वाला मोमेंटम इस डायरेक्शन में होगा। डू यू अंडरस्टैंड दैट? दोनों मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी, दोनों मोमेंटम अपोजिट डायरेक्शन में है। अगर ये है वो ब्लॉक, उसमें फ्रंट से मोमेंटम रिसीव ऐसे करेगा और रियर से मोमेंटम रिसीव ऐसे करेगा। सो व्हाट विल बी द नेट मोमेंटम? क्योंकि ये मोमेंटम इस डायरेक्शन अगर मैं प्लस समझू या इसको प्लस समझू और इसको माइनस समझू, तो आई हैव टू टेक द नेट मोमेंटम के लिए मुझे उसका डिफरेंस लेना पड़ेगा। इज दैट क्लियर? So what will be the net rate of change of momentum? Net rate of change of momentum, which is actually rate of change of momentum is the force. So this will be net force. And the net force, that force itself is called as the drag force. That force is called as the drag force, and drag force is the subtraction of these two. Now this is the bada wala quantity, this is chota quantity. So this will become 2m0 v plus v0 bracket square 8 into n by 2 minus 2m, m होगा, m0 नहीं होगा ये, this is simply m, 2m v minus v0 bracket square a n by 2। इसमें सब कॉमन आएगा, सिर्फ ये दोनों ब्रैकेट्स अलग अलग है। सो इट विल बी 2m a n by 2, ये कॉमन आएगा, दिस गेट्स कैंसिल and this will become v plus v0 bracket square minus v minus v0 bracket square. Now when you do this simplification, इसमें सब कैंसिल हो जाएगा, इसका 2v v0 और इसका 2v v0 minus 2v v0 ऐड हो जाएगा। So when you open this, this will become 4v v0. Did you understand? Huh? Yeah. So this will become 4m a n v v0. This will be the net force, I guess. बराबर है क्या? 4m, yeah, that's correct. 4m a n v v0. अब एक चीज बताइए, इफ डेंसिटी ऑफ द गैस इज रो, अगर गैस का डेंसिटी रो है, विच इज नथिंग बट टोटल मास अपॉन टोटल वॉल्यूम, बराबर है? m is the mass of each molecule and n is the number of molecules and volume is 1, क्योंकि हमने उसको एज्यूम किया था n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन यूनिट वॉल्यूम, बराबर है? तो व्हाट इज रो इज इक्वल टू mn। mn के लिए अगर मैं रो सब्स्टिट्यूट कर दूंगा तो ये क्या बन जाएगा? 4a रो v v0, सही है, इजंट इट? अच्छा, नाउ मुझे ये बताइए व्हाट विल बी द काइनेटिक एनर्जी, क्या होता है उसका? द काइनेटिक एनर्जी इज गिवन बाय this velocity is only along the x direction. This velocity is only along x direction. So we can say its kinetic energy, which is nothing but half into m into v square, is equal to, by law of equipartition of energy, it is able to move only in x direction, बराबर है क्या? So the energy associated with this is given by half
kBt, यही है ना लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी. इट हैज गॉट ओनली 1 degree of freedom, only x direction, therefore only one degree of freedom, 1 degree of freedom होगा उसका, and that is all what kinetic energy it will have. So its total kinetic or average kinetic energy associated per molecule is half kBt. That's it, only one. अब इसमें अगर मैं सब्स्टिट्यूट कर दूंगा तो ये 2 गेट्स कैंसल, एंड व्हाट इज वेलोसिटी v इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ kBt अपॉन m. दिस इज द वेलोसिटी. तो ये वेलोसिटी अगर मैं इधर सब्स्टिट्यूट कर दूंगा मॉलिक्यूल के लिए, तो व्हाट एम आई गोइंग टू गेट देयर? Did you understand this? This will become 4a rho v0 into square root of kBt upon m. Is this seen somewhere? 4a rho v0 square root of kBt upon m. अब ये डबल स्टार बोलो, कितना भी कुछ भी बोलो, लेकिन ये डेरिवेशन है. एक्चुअली मैं आपको बता दूं, आई थिंक विल स्टॉप हियर टुडे. ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं ना, ये यूनिक क्वेश्चंस होते हैं. मतलब ऐसा समझो कि आपका जो डेरिवेशन था प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस मॉलिक्यूल, प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस मॉलिक्यूल, इसका अगर आपको एमसीक्यू दिया जाए तो आप क्या करोगे? आई मीन विल यू सॉल्व इट, या उसको आप एक बार अंडरस्टैंड करोगे और फॉर्मूला याद करके 1/3 rho c square डन. डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर? आई एम ट्राइंग टू से व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू कि ये एक डेरिवेशन है. ये डेरिवेशन आप एक बार दो बार अच्छे से देखो, सीखो, ठीक है, कैसा किया है वो देखो. लेकिन ऐसे क्वेश्चंस के आंसर्स याद रखे जाते हैं एज अ फॉर्मूला. समझ में आ गया? हाँ, उसका प्रोसेसिंग सीख लो, आप देख लो. आप अगर आपको प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस मॉलिक्यूल इज गिवन बाय ए बी सी डी, पहला ऑप्शन है 1/3 rho c स्क्वायर, दूसरा ऑप्शन है 1/4 rho c स्क्वायर, तीसरा ऑप्शन है 3/4 rho c स्क्वायर एंड 1/4 rho c स्क्वायर, ऐसा. तो आप लोग उसको डिराइव करोगे क्यों? तो द पॉइंट आई वांट टू टेल यू, ऐसे क्वेश्चन जो है इसको याद रखते हैं. हाँ, सॉल्व नहीं करने का इसको. समझ में आ गई बात? ऐसे क्वेश्चंस के आंसर जो होते हैं उसको याद रखते हैं, ऐसे क्वेश्चंस को आइडेंटिफाई करके रखते हैं, भाई इसका आंसर ये है, बिकॉज दिस इज थ्योरेटिकल क्वेश्चन. डू यू अंडरस्टैंड? तो ये डबल स्टार बोलो, कुछ भी बोलो, एक बार इसका प्रोसेसिंग देख लो, आप समझ लो, आप 2-3 बार अच्छे से करो, लेकिन एग्जाम में उसको डिराइव नहीं करने का है. यू हैव टू रिमेंबर दिस थिंग्स. ओके, विल स्टॉप हियर टुडे.